So, good evening, students. Myself, Dr. Pramod Goel. Okay, I have done my MBBS from Kasturba Medical College, Manipal, and MD Forensic Medicine from Amritsar, Golden Temple City, Government Medical College. And I have also done my FAMR Fellowship. This is a program from Philadelphia, and it's being conducted in India at 4 places. I have done from CMC Ludhiana, and now I am the professor and head of forensic medicine at Adesh Institute of Medical Sciences and Research, Bathinda, Punjab. I am also chief editor of Journal of Punjab Academy of Forensic Medicine and Toxicology, and additionally I am also the controller of examination of Adesh University. So today our topic is to introduce you to the subject of forensic medicine. So this is our topic. So I will introduce you to the forensic medicine. What is the importance of forensic medicine in MBBS? And then we will talk about little bit about competency-based studies in MBBS course. I hope you are aware that from 2019 batch onwards, now the curriculum which we are following in India for MBBS course is competency-based medical education curriculum. Earlier it was different. From 2018 and previous batches it was different, but from last year 2019 batch we are following this competency-based medical education program. Then I will tell you some famous author books of this forensic medicine, and then we'll tell you about the MOOCs online sessions, and then I will tell you about my teaching methodology that I will use, and at the last I will tell you the weightage of the subject in MCI and USMLE exams. MCI word actually now we might have to change, because now you must be knowing that on 25th September 2020 MCI has been dissolved, and now it has been taken over by the NMC, National Medical Commission. So let me start with the first thing, importance of forensic medicine in MBBS. First, let me tell you what is forensic medicine. See, forensic medicine is a branch of medical sciences. In MBBS, you study a lot of subjects, so forensic medicine is one of the subjects. It is a branch of medical science in which we apply the medical and paramedical knowledge for the administration of justice. So I repeat, what is forensic medicine? It is that branch where the medical and paramedical knowledge is applied for the administration of justice. Justice means for the legal purpose, for the law. Like our medical knowledge is used for legal purpose. So that is forensic medicine, where medical knowledge is used for legal purpose. Okay, so you have to solve some illegal thing, some law related thing, and you need medical knowledge. So in this branch we use our medical knowledge to solve those legal aspects. Okay, just let me tell you some brief about this importance of forensic medicine in the MBBS course. It is taught during second and third year of MBBS. Means its teaching starts in the second year, the teaching continues in the third year, and exam is held at the end of third year. So basically this subject is taught for 2 years, in second year and third year, but final university exam is held in third year. Okay, what we do basically in this branch, what we teach to the MBBS students, that I have already told you that we teach how to apply the medical knowledge for the administration of justice, and basically we teach how to do post-mortem examination. Basically, see, that is our main part, post-mortem. You must have heard about post-mortem in movies. You must have heard post-mortem. So basically this is our subject. Okay,
So in forensic medicine, people, they do the postmortem. Okay. So, and we teach to the students how to do postmortem, whether it is a case of murder, whether it's a case of suicide, or whether it's a case of accident. Okay. So you must be in the media now. That film actor case is going on in the media. That postmortem, whether it was suicide or whether it was a murder. So a lot of things are going on. So these postmortem are done by the forensic medicine doctors. But because actually in India, the number of forensic medicine doctors are very less. So even MBBS doctors are allowed to do the postmortem. So it's not a mandatory requirement that only MD forensic medicine can do postmortem. As per current guidelines, even MBBS doctors can do. Simple MBBS doctor can do the postmortem. So that's why this subject becomes very important, because we teach this subject to the MBBS students, and afterward that student, he joins government job and he has to do the postmortem. He has still not done MD in this subject. So whatever he has learned in during MBBS, he has to apply that knowledge, application of knowledge. Okay, so that is the importance of this subject. So this is our main job, like conducting postmortem examination. Okay, then like whatever crime, all crime cases comes to forensic medicine, all crime cases. Okay, whether it is a case of rape, you have to examine the victim, or whether it is you have to examine the accused, whether he is the impotence. You must have knowing that in India a lot of high profile persons are behind the bar because of these sexual offences cases, and those persons are brought to the forensic medicine doctors to confirm whether they can commit this crime or not. So we in the forensic medicine teach this to the MBBS students, that how to examine such cases, how to prepare the report, and based upon the report prepared by us, then police accordingly registers a case against that person. So our report carries lot of value in the court, but we can't just blindly write our report. There are some rules, there are this science behind everything. We have to go as per those rules only, because in the court we are asked by the advocates of the opposite party that how you have arrived at such conclusion. So we have to explain that we have written this thing because of this. We should be able to explain what we have written. Okay, so that everything we teach in the forensic medicine. So mainly the postmortem work and criminal cases, like I've given you example for sexual offenses cases. Then additionally another important work is to examine the injured person. इंजर्ड पर्सन मींस एक पर्सन जिसके चोट लगी है, उसको इंजरीज हुई हैं और उसको इंजरी किसी दूसरे पर्सन ने पहुंचाई है. He has been injured by the action of some another person. Like एक पर्सन के सिर के ऊपर किसी ने लाठी मार दी है. He has been hit by a rod, iron rod on the head. So that person comes to the hospital, one for the treatment of his injury. Secondly, he wants that a case to be registered against that person who has hit him. Okay, the case can be registered only once a injury report is prepared. So that part, preparation of injury report, we teach in forensic medicine, how to prepare that injury report in cases of injured person. Okay, it can be the case of head injury, like I gave you example, that person is hit by a rod on the head, but it may be case of stab injury, किसी के पेट में चाकू मार दिया. Okay, emergency cases भी हो सकते हैं. So any sort of injuries can be there. So we examine those injured person, we prepare that injury report, जिसको हम medico legal report बोलते हैं, MLR. We prepare that report and our report is handed over to the police, and based on our opinion, police registered a case against that accused.
So it's a very important report and it carries a lot of value in the court. So now I've told you three things that we do in forensic medicine. We teach how to conduct the post-mortem examination, then how to examine the sexual offences cases, how to examine a case of injured person who has been injured by the action of some another person, and that injured person wants the case to be registered against that accused. So that we teach to the students how to prepare that report. Then how to examine a drunkard person. Sometimes person who is in a intoxicated state, he has consumed alcohol and he was creating nuisance in the public. And as per our law, if a drunkard person creates nuisance at a public place, it is an offense. So that person is brought by the police to us to examine whether he has consumed alcohol or not. So such type of examination is also done by forensic medicine doctor, and we teach how to conduct it, how to say whether that person has consumed alcohol, whether he is under the effect of it or not. Okay, so all these things are taught in forensic medicine, but as I told you earlier, number of forensic medicine doctors are very less in India. So in India, even MBBS doctors are allowed to do this work. So in most of the government hospitals where forensic medicine doctors are not available, this work is done by simple MBBS doctors. So our subject becomes more important when we teach this to the MBBS students. Then we teach the court procedures. See, this is a very interesting thing because whatever report we prepare, whether it is a post-mortem report, whether it is an injury report, whether it is the examination of an alcoholic person, that report, or whether it was a report of the rape victim or accused, whatever report that we prepare, we hand over to the police, and then police register a case against that accused. But as per our law, those reports are not valid as such. That means not valid as such means, I will explain this thing. These reports are not valid as such. It means that we have to go to the court and then we have to stand in the witness box and we have to say, after taking oath, that yes, I have prepared this report and I have written these points in this report, and then the defense lawyer comes and he cross-examines us. After this, our reports becomes valid. Okay, so just simply handing over post-mortem report to the police is not valid in the court. We have to go to the court. We have to stand in the witness box. Then after taking oath, we have to admit that yes, I have prepared this report and these are the findings in my report, and then defense lawyer comes and asks questions from us, and we say that cross-examination, and then the report becomes valid. So how to behave in the court, that all the court procedures we teach in forensic medicine. Okay. In addition, we teach the burn cases, like if the person has committed suicide by burns, like in India, Dowry death cases are still common. That newly married female, she commits suicide, but sometimes it may be accidental death also, and it may be labeled as murder. So those cases are brought to us for post-mortem examination. Then another thing I have written, identification. This is again done by our department, forensic medicine branch. How to identify a person, how to identify a dead body. You must be aware that very commonly we find dead bodies in the rivers, in the water bodies, which are decomposed or which are not able to be identified.
So police brings those bodies to us and say us to identify that person. So that identification job is done by forensic medicine doctors, and we teach this to the MBBS students, how to identify a person. If the body is decomposed, how to examine the skeleton, how to examine the bones. From examining bones, how we can tell whether these bones belong to a male or female, whether these bones belong to a child or an adult or an old age person. Okay, what will be the height of this person when he was alive? So just by examining a single bone, even only a single bone is available, we can tell whether what will be the height of this person when he was alive. Okay, so this identification. Sorry Yes. to interrupt, sir. मैं ये कह रहा हूँ कि there are students who are who can understand Hindi, so you can have a mix of Hindi and English. कोई problem नहीं है. Okay, सही है. So basically हम आइडेंटिफिकेशन जो होती है ना, बहुत सी अननोन बॉडीज आती हैं हमारे पास, लवारिस लाशें होती हैं. देखो मैं बठिंडा सिटी से बिलोंग करता हूँ. बठिंडा सिटी में आप मान के चलो हमारे यहाँ पे ना जो नहर है, उस नहर में हर एवरी वीक एक बॉडी तो मिल ही जाती है. तो ऑन द एवरेज 4 बॉडीज हमें मिल जाती हैं. अब वो बॉडी किसकी है, ठीक है. तो हाउ टू आइडेंटिफाई दोज पर्सन. तो ये काम जो है हम फोरेंसिक मेडिसिन में करते हैं. हम वो डिकम्पोज बॉडी को, जो गली सड़ी डेड बॉडी होती है, उसको एग्जामिन करके बता सकते हैं कि वो मेल की है या फीमेल की है, ठीक है. और उसकी एज कितनी होगी. एज उसकी 30 ईयर्स है, 35 ईयर्स है. और इवन अगर मान लो हम डीएनए वगैरह भी उसका सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं. डीएनए सैंपल लेकर अगर उसका कोई फैमिली मेंबर अवेलेबल है तो उसका डीएनए मैचिंग भी कर सकते हैं. मैं खुद ऐसे केसेस एग्जामिन कर चुका हूं जिसमें हमने मतलब डीएनए के साथ वो केस सॉल्व किया था कि वो पर्सन वाकई वही पर्सन है या वो और पर्सन था. मतलब उसकी डेड बॉडी से हमने वो डीएनए रिकवर किया और उसके जो फैमिली मेंबर जिनको लग रहा था कि ये उनकी बॉडी है, तो उनके डीएनए के साथ कंपैरिजन किया एंड वी कुड फाइंड आउट कि ये पर्सन वही है, ठीक है. फिर ये मैंने वर्ड लिखा है फायर आर्म. फायर आर्म होता है जो बंदूकें चलती हैं, पिस्टल्स, रिवॉल्वर. तो उनके साथ जो इंजरीज होती हैं उनको भी ये फोरेंसिक मेडिसिन में हम एग्जामिन करते हैं. स्टूडेंट को कई बार ये टॉपिक थोड़ा टफ लगता है फायर आर्म वाला. तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, उनकी बॉडीज के ऊपर फायर आर्म इंजरीज होती हैं. तो हम इंजरीज को देख के हम बता सकते हैं कि ये इंजरी कौन सी फायर आर्म से हुई है, ठीक है. क्या ये पिस्टल से हुई है और या फिर जो 12 बोर गन होती है उससे हुई है, ठीक है. तो हम जहाँ हमारे पास डेड बॉडीज, कई बार डेड बॉडीज आती है, तो डेड बॉडीज से हम उसकी बॉडी में से जो अगर बुलेट निकल जाती है तो उस बुलेट के ऊपर जो मार्किंग्स होती हैं उससे ये पता लग सकता है कि वो बुलेट कौन सी पिस्टल से निकली हुई है. और जो बुलेट्स की जो मार्किंग्स होती हैं ना, वो जैसे फिंगरप्रिंट्स हमारे स्पेसिफिक होते हैं. किसी भी दो बंदों के सेम फिंगरप्रिंट नहीं हो सकते. नो टू पर्संस कैन हैव सेम फिंगरप्रिंट. सिमिलरली किसी भी दो पिस्टल्स की सेम मार्किंग्स नहीं हो सकती. और जब भी वो बुलेट पिस्टल से निकलती है उसके ऊपर मार्किंग्स बन जाती हैं. तो हमें डेड बॉडी से वो बुलेट मिली है, सिर्फ बुलेट. तो हम बुलेट में मार्किंग्स को एग्जामिन करके ये बता सकते हैं कि वो कौन सी जो है पिस्टल से निकली हुई है. और वो पिस्टल हमें पता लग सकती है किस पर्सन के नाम पे लाइसेंस्ड है. तो उससे हम क्रिमिनल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है. ऐसी ड्राउनिंग जो होती है, पानी में डूबकर मरना, ये पानी में डूबने वाले केसेस ये हम लोग ही इसको मैंने ये सारा ये फोरेंसिक मेडिसिन में ही कुछ आता है, ठीक है. जैसे श्रीदेवी की डेथ हुई थी, श्रीदेवी एक्ट्रेस की पानी में डूबने से डेथ हुई थी, ठीक है. स्ट्रैंगुलेशन का मतलब है गला घोटना, गले को ऐसे घोट के उसकी डेथ की गई है. स्ट्रैंगुलेशन, गला उसका रस्सी से घोटा गया है या हाथों से ऐसे है, ठीक है. तो ये सब कुछ हम फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ते हैं. फिर पॉइजन्स, सारी की सारी पॉइजन्स जो होती है ना, आपको सेकंड और थर्ड ईयर में फोरेंसिक मेडिसिन में पढ़ाई जाती है, ठीक है. चाहे वो सल्फॉल्स पॉइजनिंग होती है, ठीक है, चाहे वो ओपियम
की पॉइजनिंग है, चाहे दतूरा की पॉइजनिंग है, ठीक है, चाहे वो हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, जिंक, मरकरी, इनकी पॉइजन है, चाहे वो तेजाब है, तेजाब, तेजाब मतलब क्रोजिव, क्रोजिव मतलब एसिड और अल्कलीज, ठीक है, किसी के ऊपर फेस के ऊपर एसिड डाल दिया जाता है, तेजाब डाल दिया जाता है किसी के फेस के ऊपर, ठीक है, ये सारा कुछ ये हम पॉइजनिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये फोरेंसिक मेडिसिन में जो जो आपको पढ़ाया जाता है, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, एग्जामिनेशन ऑफ द इंजरी केसेस, ठीक है। इंजरी केसेस आई होप मैंने क्लियर बता दिया कि अगर किसी के चोट लगी है किसी दूसरे के द्वारा, किसी दूसरे ने उसको मारा पीटा है, तो वो जो जिसको मारा पीटा गया है वो बंदा हॉस्पिटल में जाता है, एक तो अपना इलाज करवाने के लिए, पर एक वो चाहता है कि मेरे इलाज के साथ साथ जिसने मेरे को चोट पहुंचाई है उसके ऊपर केस भी रजिस्टर्ड हो, तो उसके लिए उसको अपनी रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, जिसको हम इंजरी रिपोर्ट बोलते हैं या मेडिको लीगल रिपोर्ट बोलते हैं। ये रिपोर्ट जो होती है ये हम फोरेंसिक मेडिसिन में टीच करते हैं, ठीक है। ड्रंकर्ड पर्सन, अगर कोई बंदा शराब पीकर गाड़ी चला रहा था या ऐसे ही कर रहा था, तो उसको भी एग्जामिन किया जाता है, फिर इवन हम उसके ब्लड अल्कोहल या उसकी ब्रेथ एनालिसिस से एग्जैक्टली बता सकते हैं कि कितने मिलीग्राम परसेंट इसकी बॉडी में अल्कोहल है, ठीक है, वेदर 30 मिलीग्राम है या 40 मिलीग्राम है, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे इंडिया में जो मोटर व्हीकल एक्ट है ना, उसके अंडर 30 मिलीग्राम परसेंट तक अल्कोहल अलाउड है, ठीक है। तो अगर 30 मिलीग्राम परसेंट तक अगर अल्कोहल किसी ने कंज्यूम की है तो वो गाड़ी चला सकता है, बट अगर 30 से ज्यादा है तो इट्स नॉट अलाउड, ओके। बाकी मैंने आपको बताया कि ये कोर्ट प्रोसीजर जो होते हैं, कोर्ट में जाना पड़ता है, बिकॉज हमारी रिपोर्ट जो होती है ना एज सच वैलिड नहीं होती, हमें कोर्ट में जाके उसको वैलिड बनाना पड़ता है, उस रिपोर्ट को हमें कोर्ट में जाके विटनेस बॉक्स में खड़े होकर बताना पड़ता है कि यस हमने इस केस को एग्जामिन किया था, इस डेट को एग्जामिन किया था, ये हमारी फाइंडिंग्स थी। फिर डिफेंस वाला हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उसके बाद जो होती है वो जो होती है वैलिड मानी जाती है रिपोर्ट, ठीक है। फिर ये बर्न के केसेस में मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन वाला पॉइंट भी हम ही देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, मेरे को याद है एक बार हमारे पास पोस्टमार्टम के लिए एक डेड बॉडी आई, ठीक है, डेड बॉडी थी वो बर्न थी, बिल्कुल जली हुई थी बॉडी, ठीक है, और टू डिफरेंट फैमिलीज वर क्लेमिंग ऑन दैट बॉडी। एक फैमिली कह रही थी कि ये हमारी बेटी की बॉडी है, और दूसरी फैमिली कह रही थी कि नहीं ये हमारी डॉटर इन लॉ की बॉडी है। So there were two different families claiming on the same dead body, ठीक है, वो कह रही थी हमारी बॉडी है, वो कह रही थी हमारी बॉडी है। Now how to identify कि ये बॉडी किसकी है, ठीक है, तो हमने उस डेड बॉडी के एक्सरे करवाई, एक्सरे करवा के हमने उसकी बोन्स को स्टडी किया, और बोन से हमने उसकी एज डिटरमिन की कि उसकी एज कितनी है, तो हमें पता लगा कि उनकी उसकी एज तो 16 साल है। तो फिर जो एक फैमिली जो कह रही थी कि ये हमारी बेटी है 16 साल की, तो उससे मैच कर गया। अब दूसरी फैमिली जो कह रही थी कि ये हमारी डॉटर इन लॉ है 30 इयर्स की, तो उनको हमने बोल दिया कि नहीं जी आपकी डॉटर इन लॉ नहीं है, ये तो 16 साल की लड़की की डेड बॉडी है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन वाला जो काम है ये हम पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। प्लस मैंने आपको बताया कि बहुत सारी अननोन बॉडीज, लवारिस लाशें नहरों में पानी में मिल जाती हैं, ठीक है, तो उनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। उनकी बोन्स से हम एक तो मेल फीमेल का इजीली पता चल जाता है कि वो मेल्स की हैं या फीमेल्स की हैं, दूसरी उनकी एज पता लग जाती है और हाइट पता लग जाती है, ठीक है, और उसका डीएनए वगैरह रिकवर करके उसके फैमिली मेंबर से कंपैरिजन करके हम एग्जैक्टली भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फायर आर्म केसेस जो गोलियां चलती हैं बंदूकों से, तो उनकी जो इंजरीज को हम स्टडी करते हैं, और डेड बॉडी से जो बुलेट मिलती है उसके ऊपर मार्किंग्स को स्टडीज करके हम ये भी बता सकते हैं कि ये कौन सी जो पिस्टल से निकली हुई है और वो पिस्टल किसके नाम पे इशू है, वो सारा पता चल जाता है। तो इसलिए आप क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ड्राउनिंग मैंने जैसे बताया, श्रीदेवी जी की डेथ हुई थी ड्राउनिंग के साथ, ठीक है, तो ड्राउनिंग वो एक्सीडेंटल है या होमिसाइडल है। होमिसाइडल का मतलब होता है मर्डर, होमिसाइडल, ठीक है, एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंटल अचानक हो गया, सुसाइड मतलब सुसाइड, ठीक है, स्ट्रैंगुलेशन गला घोटना। फिर पॉइजन्स के बारे में मैंने बताया कि पॉइजन्स को भी हम फोरेंसिक मेडिसिन में स्टडी करते हैं। हम डेड बॉडी से ये पता कर सकते हैं कि इसने कौन सी पॉइजन के साथ डेथ हुई है,
बिकॉज हर पॉइजन की जो फाइंडिंग्स होती है ना वो अलग अलग होती हैं। तो हम जब पोस्टमार्टम करते हैं, बॉडी को ओपन करते हैं, तो हम फाइंडिंग्स को देख के बता सकते हैं। और इसके अलावा फिर हम उसका बॉडी में कुछ जो ऑर्गन्स को लैब में भेजते हैं, जो फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज होती हैं, वहां पे वो पॉइजन को टेस्ट करके बता सकते हैं एग्जैक्टली कि कौन सी पॉइजन की डेथ हो गई है। ठीक है, पर कई बार कुछ केसेस में नहीं भी पता लगता, जैसे अपने जो हाईफाई केसेस हैं इंडिया में, जिसमें ये काफी डिबेट चला है कि कौन सी पॉइजन है। ठीक है, चलो ये मैंने कुछ बताया कि हम फोरेंसिक मेडिसिन में क्या पढ़ाते हैं आपको। अच्छा, इसके अलावा हम ना लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मतलब लॉ भी पढ़ाते हैं। लॉ पूरा नहीं पढ़ाते कि आपको एलएलबी नहीं करवाते हैं, ठीक है, एलएलबी तो एक अलग पूरा कोर्स हो गया, पर जो लॉ मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड है वो हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, देखो आजकल मेडिकल प्रोफेशन जो है ना, ये मतलब इतना आसान चीज नहीं है। लोग कंप्लेंट करते हैं आपकी, ये डॉक्टर ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया, इसने गलत ट्रीटमेंट कर दिया, आपके ऊपर केस कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने जी मरीज की कंसेंट नहीं ली, ये कर दिया, वो कर दिया। और फिल्मों में भी कई बार डॉक्टर्स का के अगेंस्ट काफी कुछ दिखाया जाता है। तो इसलिए आपको जो लॉज इन रिलेटेड टू मेडिकल प्रोफेशन है उसकी नॉलेज जरूर होनी चाहिए, ताकि आप अपने आप को सेव कर सको। ठीक है, क्या आप काम कर सकते हो, क्या नहीं काम कर सकते, इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, मतलब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में कर सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने गलत कर दिया तो आपको जेल हो जाएगी। ठीक है, ऐसी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट है। सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट इज नॉट अलाउड बाय द लॉ इन अवर कंट्री, इन इंडिया। ठीक है, तो आप अल्ट्रासाउंड मशीन आपके पास है, आपने आपको लगा हुआ क्या है, चलो एक मशीन से नीचे सेक्स ही देखना है तो क्या फर्क पड़ता है, बट नहीं, तो लॉ कहता है कि आप ये नहीं कर सकते। तो ये लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन है, वो हम फोरेंसिक मेडिसिन में आपको पढ़ते हैं कि कौन कौन से लॉज हैं जो फोरेंसिक मेडिसिन, जो मेडिकल प्रोफेशन के साथ रिलेटेड हैं, जो डॉक्टर्स को जिनके बारे में जानकारी होनी ही चाहिए। ठीक है, इन अदर वर्ड यू कैन से कि हम थोड़ा बहुत आपको लॉयर बना देते हैं। ठीक है, फोरेंसिक मेडिसिन। देखो जो प्रेजेंटली हमारा इंडिया का कानून है ना, तो उसमें पोस्टमार्टम सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर ही कर सकता है, ओनली एंड ओनली एमबीबीएस डॉक्टर। मैंने आपको बताया कि फोरेंसिक मेडिसिन की एमडी जरूरी नहीं है, बट आप ये एमबीबीएस में हम पढ़ाते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन वाले डॉक्टर्स पढ़ाते हैं इसको, पर और कोई भी पोस्टमार्टम नहीं कर सकता। तो ये प्रिविलेज जो है ना, ये प्रिविलेज मैं बोलता हूँ कि ये प्रिविलेज सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर को ही मिलती है। कोई बीएएमएस डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर या यूनानी सिद्धा जो और पैथीज हमारी कंट्रीज में चलती हैं, उनको पोस्टमार्टम करने की परमिशन नहीं है। हालांकि होम्योपैथी में फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ाई जाती है, बट वो पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। तो पोस्टमार्टम करने का जो प्रिविलेज है वो सिर्फ एंड सिर्फ एमबीबीएस डॉक्टर को ही है। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारी कंट्री में फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स की बहुत शॉर्टेज है। ठीक है, इसीलिए ये पोस्टमार्टम वाला काम हमें एमबीबीएस डॉक्टर को देना पड़ता है। देखिए हमारे यहाँ पे हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं। हड्डियों के डॉक्टर जो होते हैं वो हड्डियों का ऑपरेशन करते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हड्डियों का ऑपरेशन नहीं करता। बट क्योंकि फोरेंसिक मेडिसिन के डॉक्टर्स की बहुत कमी है, इसलिए एमबीबीएस वालों को काम दिया जाता है। बट इसमें मैं मतलब कहना चाहूंगा कि जो क्वालिटी एमबीबीएस डॉक्टर्स दे रहे हैं वो उतनी अच्छी नहीं रहती। तो डेफिनेटली अगर एमडी डॉक्टर्स होंगे तो हम बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बेटर रिपोर्ट्स दे सकते हैं, हम बेटर जो कानून की हेल्प कर सकते हैं, और जॉब्स की कोई शॉर्टेज नहीं है। फोरेंसिक मेडिसिन की हर जगह पे वैकेंसी है। मैं बठिंडा सिटी से बिलोंग करता हूँ। पूरी बठिंडा सिटी में हमारा सिविल हॉस्पिटल है। सिविल हॉस्पिटल में एक भी फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर नहीं है, जहां पे रोज के 5 पोस्टमार्टम होते हैं। नॉट इवन ए सिंगल डॉक्टर विद एमडी फोरेंसिक मेडिसिन डिग्री इज देयर। ठीक है, बंदे अवेलेबल ही नहीं है। नॉट ओनली बठिंडा, लाइक मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, पंजाब के बाकी भी सिटीज में मतलब जहां पे पोस्टमार्टम होते हैं फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स अवेलेबल ही नहीं है। और सिमिलरली इज द स्टेट कंडीशन ऑफ ऑल द अदर स्टेट्स इन इंडिया। तो बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो फोरेंसिक मेडिसिन में शॉर्टेज है तो डिमांड है,
और सैलरी भी बुरी नहीं है, अच्छी सैलरी है बिल्कुल, ठीक है। जो क्लिनिकल ब्रांचेस से कम है, अगर आप कहोगे क्लिनिशियन जो होते हैं पेशेंट देखते हैं उनसे कम रहती है, बट इट्स ए गुड सैलरी। देखो डेंजरस तो नहीं है, देखो अगर आपको अच्छी सी जानकारी है तो आप अपने आप को भी सेव कर सकते हो, ठीक है। आप हेल्प भी, कानून की भी हेल्प कर सकते हो, डेंजर कुछ नहीं है। डेंजर मान लो, देखो कई बार देखो प्रेशर तो पड़ता है, मान लो आप मर्डर का केस की रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है, प्रेशर तो पड़ता है। अभी जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, मतलब एक देखो अगर आपकी आपकी नॉलेज प्रॉपर नहीं है ना, तभी गलती हो सकती है, गलती हो जाती है, तब प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। प्रेशर पड़ता है कई बार रिपोर्ट बनाने के लिए, जी रिपोर्ट ऐसी बना दो, आप रिपोर्ट ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ। पर देखो कोई भी आपको ऐसे इतना, मतलब ऐसे नहीं है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक से काम कर रहे हो, तो अपनी ईमानदारी से काम कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी डेंजर की बात नहीं है, ठीक है। कानून आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्शन भी मिल सकती है, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत हाई प्रोफाइल केस का पोस्टमार्टम कर रहे हो, तो आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से प्रोटेक्शन की मांग कर सकते हो, आपको स्पेशली गनमैन मिल जाता है। हमारे जो बॉस थे जिनके अंडर मैंने अमृतसर में एमडी की है, उनको स्पेशली गनमैन मिला हुआ था, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा, तो डेंजर की बात नहीं है, खतरे की बात नहीं है। बाकी खतरा तो हर जगह ही होता है, देखो खतरा तो आप सड़क पे जा रहे हो, कोई आपका एक्सीडेंट से आपको मार दे, खतरा तो हर जगह ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अदरवाइज इट्स इंटरेस्टिंग ब्रांच, अगर आपको इंटरेस्ट है तो, और स्टूडेंट को काफी इंटरेस्टिंग लगती भी है ये ब्रांच ना। मतलब सेकंड ईयर में उनको काफी, मतलब जब मैं स्टूडेंट को पोस्टमार्टम दिखाता हूँ, मैं यूजली खुद ही पोस्टमार्टम करता हूँ, मैं खुद अपने हाथ से डिसेक्शन करता हूँ, तो स्टूडेंट बहुत इंजॉय करते हैं। और इवन मैं कोर्ट में भी जब जाता हूँ ना, कोर्ट में स्टूडेंट को साथ ले जाता हूँ, और मेरे को जस्ट अनाउंस करना होता है स्टूडेंट को कि आज मेरी कोर्ट एविडेंस है, आज कौन कौन जाएगा, तो मेरे को चूज करना मुश्किल हो जाता है। वो कहते हैं कि सर मेरे को ले जाओ साथ में, मेरे को ले जाओ, मेरे को ले जाओ। तो इट्स ए गुड थिंग, अच्छा है, ठीक है। बाकी अपनी अपनी पसंद है, आई लाइक दिस ब्रांच। So then there is a question, from Bhargav. She is asking, sir, what is your personal life? In terms of forensic doctor हो तो आप work life balance बना सकते हो कि फिर emergencies भी होती है तो आप कैसे balance करते हो सर? नहीं नहीं, बहुत एक्चुअली देखो इतना बिजी नहीं रहता, बिकॉज आप सिर्फ अकेले डॉक्टर नहीं होते, ठीक है। आपकी टीम होती है। इमरजेंसीज में भी मान लो, अभी जैसे मेरा भी देखो, मैं भी प्रोफेसर एंड हेड भी हूँ, तो इमरजेंसी में केसेस आते हैं तो मेरा फोन पे काम चल जाता है ना, तो वहां पे मेरे अंदर 5 लोग और काम कर रहे हैं जो पीछे इमरजेंसी, वो भी रोटेशनल वाइज ड्यूटी उनकी लगती है, तो वो पीछे काम संभाल रहे हैं। और वर्क लाइफ में भी देखो 5 बजे के बाद पोस्टमार्टम वैसे नहीं होते, 5 बजे के बाद आप वैसे ही फ्री हो, ठीक है। और मोस्टली आपको ऐसे तो होता नहीं कि डेली आपकी पोस्टमार्टम ड्यूटी लगेगी। यूजली क्या होता है कि 10 डेज, मतलब 10 डेज पोस्टमार्टम ड्यूटी लगती है, 10 डेज ऑफ होता है, ऐसे चलता होता है, ठीक है। तो इजीली आप मैनेज कर लेते हो। बट प्रॉब्लम एक और मतलब जो मैं फील कर रहा हूँ ना, बिकॉज हमें फोरेंसिक मेडिसिन डॉक्टर्स को थोड़ी लॉ की नॉलेज होती है, ठीक है, एक थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज होती है, और हमारा कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगता रहता है, पुलिस वालों के साथ हमारे रिलेशन बने होते हैं। तो यूजली जो इंस्टीट्यूट वाले, मैं जैसे मेडिकल कॉलेज में काम करता हूँ, तो वो आपकी ये जो कैपेबिलिटीज को यूटिलाइज करते हैं, आपको कुछ और एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन वर्क मिल जाता है, बट मतलब अच्छी पोस्ट मिलती है आपको ना, यू एंजॉय योर वर्क। ओके, अच्छा मेरे को बताया गया था कि कुछ मैं फेमस बुक्स के नाम बताऊं। देखो बुक्स फोरेंसिक मेडिसिन में काफी चलती हैं, बट फिर भी स्टूडेंट को ये रेड्डी वाली बुक काफी जगह, काफी इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में ये बुक प्रेफर की जाती है, रेड्डी की बुक, ठीक है। साउथ के कुछ कॉलेजेस में ये पिल्ले की बुक चलती है, डॉक्टर पिल्ले जो है ये अमृता इंस्टीट्यूट में है साउथ में, और उनकी ही एक ऐसी लैब है जिन्होंने अपने डिपार्टमेंट में ही टॉक्सिकोलॉजी लैब, पॉइजन लैब बनाई हुई है उन्होंने ना, तो इनकी बुक्स भी काफी फेमस चलती है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ये मागेंद्रन की बुक काफी चलती है, जे मागेंद्रन, जो स्टूडेंट पीजी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, तो इसने काफी अच्छे तरीके से, बड़ी शॉर्टली और पतली सी बुक है, स्टूडेंट पतली बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि ये रेड्डी और पिल्ले थोड़ी मोटी बुक्स हैं, तो ये मागेंद्रन की बुक्स भी स्टूडेंट काफी लाइक करते हैं, ठीक है। फिर पारिक की बुक है, ये भी काफी पुराने टाइम से चल रही है, पारिक की बुक, ठीक है, काफी इसको भी स्टूडेंट पसंद करते हैं। और फिर बहुत ही पुरानी बुक है मोदी की बुक, मगर अगर आपके मतलब कोई दादाजी डॉक्टर हैं, तो अपने दादाजी से पूछोगे कि फोरेंसिक मेडिसिन की कौन सी बुक्स पढ़ी, तो वो कहेंगे मोदी की बुक पढ़ी है हमने, ठीक है। आज भी चल रही है मोदी की बुक, पर ये बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, पर कोर्ट में इसको बहुत प्रेफरेंस मिलती है। अगर आप कोर्ट में कहो कि जी मैंने ये मोदी की बुक से कोट किया है, तो कोई भी जज आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा,
तो मोदी की बुक को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है कोर्ट में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बुक्स हैं, और भी बुक्स हैं, वो हम बाद में मतलब जब आप फील्ड में आओगे हम बता सकते हैं। स्टूडेंट मोस्टली रेड्डी की बुक पढ़ते हैं ज्यादा, पारिक हमारे यहाँ पे पारिक भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक मेरे को ये बताया गया था कि मैं आपको ये कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताऊं कुछ। देखिए मैंने आपको बताया है कि 2019 जो पिछला एडमिशन हुआ है, पिछले साल एडमिशन हुआ है 2019, अभी इस बार 2020 का एडमिशन हुआ है, होना है, हुआ नहीं है अभी ना। 2019 का जो एडमिशन बैच है ना, उनका जो क्यूरिकुलम है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्यूरिकुलम है, ठीक है। इसमें मैं ये ना मैं आपको थोड़ा कॉम्पिटेंसी का मतलब समझा देता हूँ। थोड़ा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि पुराना क्यूरिकुलम क्या चल रहा था और नया क्यूरिकुलम क्या है। मैंने एक एग्जांपल रखी है, एक ना, जैसे एक कार होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जब बाहर निकलती है, जहाँ पे वो कार बनी है, तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप ले सकते हो मेडिकल कॉलेज, और कार मतलब आप लोग हो, ठीक है। जब एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कार निकल के बाहर निकलती है, तो जो जो इंजीनियर होते हैं ना, वो कहते हैं कि ये कार ना 200 किलोमीटर की स्पीड तक दौड़ सकती है, और उसका स्पीडोमीटर ने 200 किलोमीटर तक रखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये उसकी कॉम्पिटेंसी है, मतलब ये कार कॉम्पिटेंट है, वो कैपेबल है 200 किलोमीटर तक दौड़ने के लिए, 200 किलोमीटर की रफ्तार से वो दौड़ सकती है। बट जब आप उसको सड़क पर चलाते हो तो वो मैक्सिमम 120 120 140 तक ही दौड़ पाती है, ठीक है। पर उसका स्पीडोमीटर 200 मीटर कह रहा होता है। तो वो जो स्पीडोमीटर, वो थी उसकी कॉम्पिटेंसी, बट वो जो एक्चुअली काम कर रही है वो है इसकी कंपिटेंस, उसको हम बोलते हैं कंपिटेंस, ठीक है। तो दोनों में फर्क है। कंपिटेंसी तो मतलब कैपेबिलिटी क्या है आपकी, और कंपिटेंस होती है जो आप एक्चुअली क्या परफॉर्म कर रहे हो, एक्चुअली परफॉर्मेंस क्या है। तो अभी ये जो कंपिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम जो 2019 बैच से ना, अभी जो हमारी प्रीवियस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उन्होंने ना कंपिटेंसी डिफाइन कर दी है हर सब्जेक्ट की, ये फोरेंसिक मेडिसिन की ये कॉम्पिटेंसी है, सर्जरी की ये कॉम्पिटेंसी है, ऑर्थोपेडिक्स की ये कॉम्पिटेंसी है। और उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि स्टूडेंट इन कॉम्पिटेंसी को अगर क्लियर करेगा तभी वो पास माना जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने ये सारा ना मतलब ये कॉम्पिटेंसी की पूरी लिस्ट बना दी है, जो पहले नहीं था, पहले ऐसा नहीं था सिस्टम, ठीक है। ये सिर्फ 2019 बैच से ही स्टार्ट हुआ है, पर अब आपके लिए भी ये सेम सिस्टम ही रहेगा, ठीक है। आई होप मैंने थोड़ा क्लियर किया है कि कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, कैपेबिलिटी की आप क्या कर सकते हो। कॉम्पिटेंस क्या है कि जो आप एक्चुअली कर रहे हो, ठीक है, जो आप एक्चुअली कर रहे हो। अब मान लो अपने मेडिकल कॉलेज से आपने पास हो गया, तो वो आपको हम एमबीबीएस की डिग्री दे देते हैं। इट मींस यू कैन प्रैक्टिस द मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑब्स गाइनी, मतलब आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो, मेडिकल प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बट एक्चुअली आप ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप सिजेरियन सेक्शन नहीं कर सकते, आप कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज नहीं कर सकते, एक्चुअली आप उतना कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। बट आपको बाहर निकाला जाता है सर्टिफाई करके कि ये सब सब कुछ कर सकते हो। तो ये ऐसे कॉम्पिटेंसी ये सारा हमारा क्यूरिकुलम है जो भी नया बना हुआ है, पिछले साल से इम्प्लीमेंट हो चुका है, ठीक है। इसमें ना कुछ चीजें इन्होंने जो नए क्यूरिकुलम में स्टार्ट की है ना, एक अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर स्टार्ट किया है। अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर में ही आपको पेशेंट दिखाने शुरू कर देते हैं। पहले क्या था ना, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड पेशेंट दिखाते थे आपको, फर्स्ट ईयर सिर्फ डेड बॉडीज के ऊपर पढ़ाया जाता था आपको, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर मतलब, ठीक है, मेनली तो आपको फर्स्ट ईयर में डेड बॉडीज के ऊपर पढ़ाते हैं जो आपका एनाटॉमी का सब्जेक्ट होता है, बट थोड़ा बहुत आपको क्लिनिकल एक्सपोजर भी दिया जाएगा, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, ठीक है। ये मतलब नया क्यूरिकुलम जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। फिर लर्नर सेंट्रिक मतलब स्टूडेंट सेंट्रिक है, ये स्टूडेंट सेंट्रिक, पेशेंट सेंट्रिक मतलब आपको पेशेंट दिखाए जाएंगे आपको। आउटकम बेस्ड अप्रोच है, आउटकम मतलब आप फाइनली क्या कर पाओगे, वट यू विल बी एबल टू डू, वट इज योर फाइनल आउटकम, मतलब ये आउटकम बेस्ड अप्रोच है जो नया क्यूरिकुलम है। एंड इंटीग्रेटिंग सब्जेक्ट्स, ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट्स को आप इंटीग्रेट करो, ऐसे नहीं है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया, दूसरा पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा दिया। देखो फाइनली तो आपको डॉक्टर बनाया जा रहा है और आपने ह्यूमन बॉडीज का ट्रीटमेंट करना है, तो सारे सब्जेक्ट्स आपस में इंटीग्रेटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं,
तो वो कह रहे हैं कि जब पढ़ाना है स्टूडेंट्स को वो इंटीग्रेटेड तरीके से ही पढ़ाओ, ठीक है। तो वो नया करिकुलम में इंटीग्रेशन शुरू हो चुकी है, पहले इतनी इंटीग्रेशन नहीं होती थी, अब प्रॉपरली हो रही है। और ऑर्गन सिस्टम बेस्ड का मतलब होता है कि मान लो आपको हम ऑर्गन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा, तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको पहले एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहे हैं तो कहते हैं दूसरे में भी साथ में पैरेलल पढ़ा दो, तीसरे में भी पैरेलल पढ़ा दो, इंटीग्रेट कर दो ताकि स्टूडेंट को एक कंप्लीट पिक्चर मिल जाए, ठीक है। तो ये नए करिकुलम में शुरू हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो नए करिकुलम में क्या कुछ है, एक तो अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर है जो पहले नहीं होता था। इट इज मोर ऑफ लर्नर सेंट्रिक, मतलब स्टूडेंट्स को ज्यादा सेंटर में रख के ये करिकुलम बनाया गया है। पेशेंट सेंट्रिक है, आउटकम बेस्ड अप्रोच है, इंटीग्रेशन है इसमें, ठीक है। इट रिप्लेस रोट लर्निंग, रट्टाबाजी नहीं लगानी, रोट लर्निंग नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि आप क्या अप्लाई कर सकते हो। इट रिप्लेस रोट लर्निंग विद फंडामेंटल कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज, ठीक है। मतलब आपके कंसेप्ट बनाने हैं, आपके फंडेज बनाने हैं, रट्टे नहीं लगवाने हैं आपको। इट्स फोकस ऑन बिकमिंग गुड डॉक्टर्स एंड नॉट ग्रेट एग्जाम राइटर्स, ठीक है। सिर्फ आपको एग्जाम राइटर्स नहीं बनाना, आपको अच्छे डॉक्टर्स भी बनाना है। तो ये सब कुछ नया करिकुलम जो है ना बहुत ही अच्छा बना हुआ है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन, सीबीएमई इसको बोलते हैं, सीबीएमई करिकुलम, ठीक है। तो अच्छा, मोक्ष के बारे में आपको देखिए, मोक्ष में जो टॉप फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फर्स्ट ईयर से ही आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। लाइव क्लासेस हो रही हैं, जस्ट लाइक अभी जैसे मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, लाइव ऑनलाइन कोचिंग फ्रॉम ग्लोबल फैकल्टीज फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आपको सारी फैकल्टीज, आपको बेस्ट फैकल्टी इन्होंने चूज की हुई है, ठीक है। लर्नर्स स्टडिंग फ्रॉम 10 डिफरेंट कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं इसमें। एंड इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। एक्सटेंसिव टेस्ट एनालिटिक्स, आपके काफी टेस्ट लिए जाएंगे, उसके बेसिस के ऊपर एनालिसिस करके आपको अकॉर्डिंगली जहां पे भी मॉडिफाई करना है स्टडी को मॉडिफाई किया जाएगा। स्पेशल डाउट सॉल्विंग सेक्शंस अलग से लिए जाएंगे डाउट सॉल्विंग के लिए। एंड अनलिमिटेड वैलिडिटी फॉर लर्नर्स, ठीक है। अनलिमिटेड वैलिडिटी है आपकी। ये कुछ बेनिफिट्स हैं आपके मोक्ष के क्लासेस लगाने के, ठीक है। और मेरा जो मेथडोलॉजी आपको रहेगा ना, मैं आपको प्रॉब्लम बेस्ड, मतलब आपको मैं ना एग्जैक्टली मतलब मैं ऐसे नहीं है कि थियोरेटिकल पढ़ाऊंगा, आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि देखिए ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि बर्न की बॉडी आई, बर्न बॉडी, टू डिफरेंट फैमिलीज वर क्लेमिंग ऑन दैट बॉडी, तो हाउ वी सॉल्व दैट केस। इट वाज एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल। और हमारे पास इतने सारे केसेस आते हैं कि हमें ना हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स की जरूरत नहीं पड़ती, वी कैन गिव यू रियल एग्जांपल्स। आप कोई भी पेपर न्यूज़पेपर उठा लो, हम आपको इतनी एग्जांपल्स दे सकते हैं। तो मेरी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी रहेगी, मैं आपको भी एग्जैक्टली प्रॉब्लम बताऊंगा और हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, ठीक है। और मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स दिखा सकता हूँ उसके रिलेटेड, पर वो एक एक्चुअल पर्सन की फोटोग्राफ नहीं दिखा सकता, नहीं तो वो आपको पता है लीगल प्रॉब्लम्स आ जाती है, कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाती है, ठीक है। अगर फोटो दिखाऊंगा तो उसकी आइडेंटिफिकेशन में उसकी मेरे को हाइड करनी पड़ेगी। कुछ वीडियोस दिखा सकता हूँ मैं आपको, जितनी भी परमिटेड हैं वीडियोस, कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखा सकते हैं हम आपको, और बाकी इंटरेक्शन तो चलता ही रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये मेरी मेथोडोलॉजी रहेगी टीचिंग की। अच्छा, फिर लास्ट है कि फोरेंसिक मेडिसिन की वेटेज कितनी रहती है। तो अगर पीजी एग्जाम की बात करें तो पीजी में टोटल प्रेजेंटली जो सिस्टम है 300 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 300 क्वेश्चन, टोटल 19 सब्जेक्ट्स होते हैं जो एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। और फोरेंसिक मेडिसिन में 10 to 15 क्वेश्चन ना फोरेंसिक मेडिसिन में आते हैं आउट ऑफ 300, ठीक है। तो पीजी एग्जाम में तो इतना इसकी वेटेज है। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो गवर्नमेंट जॉब में बेसिकली आपको ऑटोप्सी पोस्टमार्टम करने पड़ते हैं, मेडिको लीगल केसेस को एग्जामिन करना पड़ता है और कोर्ट में जाना पड़ता है। तो बेसिकली गवर्नमेंट जॉब में हमारी ब्रांच की बहुत वैल्यू रहती है, क्योंकि ये सारा कुछ आपको फोरेंसिक मेडिसिन में ही सिखाया जाता है। अगर यूएसएमएलई की बात करें तो यूएसएमएलई में टॉक्सिकोलॉजी ऑफ पॉइजन्स हैं, पॉइजन्स के ऊपर काफी क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपको फोरेंसिक मेडिसिन में भी पढ़ाते हैं, आपको बाकी मेडिसिन में भी पढ़ाए जाते हैं। फिर एथिक्स वाला चैप्टर है जो फोरेंसिक में पढ़ाया जाता है।
और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो मैंने बताया था, लॉ इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ लॉज भी आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन। कंप्लीट एलएलबी नहीं करवाएंगे, बट मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड जो लॉज है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये चीजें यूएसएमएल में आती हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स के लिए तो, आपके लिए तो पुराना भी नया ही था, आपको पता ही नहीं है पुराना क्या था, ठीक है। इट्स गुड, इट्स बैड, हमने स्टूडेंट्स का ना फीडबैक भी लिया है। हम स्टूडेंट्स को एक्चुअली हमने कुछ पुराने स्टूडेंट्स को भी बताया कि हमने अभी नए स्टूडेंट के लिए ऐसा शुरू किया है, तो एवरीवन इज लाइकिंग दिस, इट्स ए गुड, इट्स इजी कंपेयर टू द ओल्ड क्यूरिकुलम। अच्छा हो गया है, बेटर हो गया है, ठीक है। पहले रट्टेबाजी ज्यादा हो रही थी और आउटकम उतनी नहीं निकल पा रही थी पहले, अभी बेटर आउटकम निकलेगी इसकी, स्टूडेंट को बेटर वो अप्लाई कर पाएंगे नॉलेज को ना, अच्छा है, गुड है ये। एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन करनी पड़ेगी आपको ना, एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन। और प्रेजेंटली मैंने आपको बताया कि फॉरेंसिक मेडिसिन मतलब इजीली इसका ना अभी कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं रहता। एक्चुअली लोग ना इसको पता नहीं कुछ ना थोड़ा पोस्टमार्टम का ना मतलब पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर है ये, चीर फाड़ करता है, मतलब लोग उसको पता नहीं क्या समझते हैं, तो इसलिए ना इसकी सीट्स खाली बच जाती हैं फॉरेंसिक मेडिसिन की, और कंपटीशन ज्यादा नहीं है, इजिली मिल जाती है। जस्ट नीट क्वालिफाइड अगर हो तो एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन में भी कंपटीशन ज्यादा नहीं है, अच्छे कॉलेजेस में भी, मतलब टॉप कॉलेजेस में, एम्स वगैरह में भी इजिली मिल जाती है फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी ना। और कोई तरीका नहीं है आपको इस फील्ड में आने का, आपको एमबीबीएस के बाद एमडी फॉरेंसिक मेडिसिन ही करनी पड़ेगी। नहीं प्रेशर नहीं रहता, मैं ना आपको थोड़ा, देखो एक फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक साइंस दोनों अलग अलग ब्रांचेज हैं। मैं आपको फोरेंसिक मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। फोरेंसिक मेडिसिन होती है जो एमबीबीएस के बाद होती है। एक होती है फोरेंसिक साइंस जो कि बीएससी, एमएससी, पीएचडी फोरेंसिक साइंस होती है। जो लैब्स वगैरह में काम करते हैं वो फोरेंसिक साइंस वाले लैब काम करते हैं। जो डीएनए का एक्चुअली डीएनए का टेस्ट करते हैं ना, वो फोरेंसिक साइंस वाले करते हैं। जो फिंगरप्रिंट वाला काम करते हैं वो फोरेंसिक साइंस वाले करते हैं। जो बुलेट्स को जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई करते हैं वो फोरेंसिक साइंस वाले करते हैं। हम फोरेंसिक मेडिसिन वालों का जो मेन काम होता है पोस्टमार्टम करना, इंजरी रिपोर्ट तैयार करना, और ये जो मैंने आपको बताया कि ये सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस हैं, ड्रंकनेस के केसेस हैं, ये हमारा काम रहता है मेनली। तो फोरेंसिक मेडिसिन और फोरेंसिक साइंस इंडिया में ना अलग अलग चलती हैं, दोनों का बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो फोरेंसिक मेडिसिन में अगर आप मतलब प्रेशर नहीं रहता है इतना, क्योंकि देखो ऐसे जो हाई फाई केसेस जो कितने का आते हैं, बहुत ही कम होते हैं। बाकी तो रूटीन में तो नॉर्मली वो एक्सीडेंट के केस आते हैं, सुसाइड के केस आते हैं, ठीक है, वो इतना नॉर्मल रूटीन केसेस होते हैं वो ना। देखो फॉरेन में फोरेंसिक मेडिसिन का ना सिस्टम ही डिफरेंट है। अगर आप यूएस की बात करो ना, वहां पे एक्चुअली जैसे इंडिया में आप एमबीबीएस के बाद डायरेक्टली एमडी फोरेंसिक मेडिसिन मेडिसिन कर सकते हो, वहां पे एक्चुअली फोरेंसिक की वेटेज बहुत ज्यादा है, और वहां पे ये एक सुपर स्पेशलिटी है। वहां पे आप डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद फोरेंसिक मेडिसिन नहीं कर सकते, वहां पे आपको पहले एक एमडी पैथोलॉजी करनी पड़ती है, फिर आप फिर सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट वहां पे बोलते हैं। एक्चुअली जो क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने का सिस्टम इंडिया का है ना, इंडिया में पुलिस सिस्टम चलता है। तो इंडिया में कोई भी क्राइम होता है पुलिस आती है, ठीक है। और जो पुलिस जहाँ पे मैक्सिमम मजिस्ट्रेट आ जाते हैं कुछ केसेस में, ठीक है, तो इंडिया में या तो पुलिस इंक्वेस्ट सिस्टम चलता है या मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट चलता है। बट फॉरेन कंट्री में स्पेशली यूएस में मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम है, और मेडिकल एग्जामिनर वो होते हैं फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। और वो इसी में उन्होंने सुपर स्पेशलाइजेशन की होती है, उनकी मेडिकल बैकग्राउंड भी होती है, उनकी लीगल बैकग्राउंड भी होती है, और उनकी ये फोरेंसिक पैथोलॉजी और फोरेंसिक मेडिसिन ये सब कुछ होता है, ऐसे होता है। पता है क्या, एमबीबीएस में ना हम आपको प्रैक्टिकल्स नहीं ज्यादा करवाते, आपको थ्योरी पढ़ाते रहते हैं। आपको बताते रहते हैं कि पोस्टमार्टम ऐसे करना है, ये इंजरी रिपोर्ट ऐसे तैयार करनी है, ये रेप विक्टिम को ऐसे एग्जामिन करना है, बट आपको एक्चुअल केसेस नहीं हम उतने दिखा पाते, ठीक है। और
एमडी में आपने एक्चुअल में काम करना होता है। एमडी में फर्स्ट ईयर में ही मैंने पोस्टमार्टम शुरू कर दिए थे। और मैंने देखो मेरी 3 साल का मैंने एमडी किया अमृतसर में, तो 3 साल में मैंने अराउंड 500 के लगभग पोस्टमार्टम किए, और अराउंड मैंने 1500 के आसपास मैंने इंजरी रिपोर्ट्स तैयार की। ठीक है, तो उसके बाद मैं उनकी कोर्ट एविडेंस पे गया डायरेक्टली। तो वहां पे आप एमडी में आप डायरेक्टली काम करते हो, आप खुद आपको फुल फ्लेज्ड काम मिल जाता है आपको, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इंडिया में एमबीबीएस डॉक्टर काम कर सकता है, और एमडी जब आप फोरेंसिक ज्वाइन कर रहे हो तो यू आर ऑलरेडी एमबीबीएस, तो आपको फुल फ्लेज्ड काम करने को मिल जाता है आपको ना। तो वो डिफरेंट हो जाता है, मतलब आप पूरा डेडिकेटेड एक ही ब्रांच में काम कर रहे हो। एमबीबीएस में तो एक सिर्फ आप एक सब्जेक्ट के मुताबिक पढ़ते हो इसको। लास्ट मैसेज। देखो मैं ना ये कहूंगा कि फोरेंसिक मेडिसिन में देखो कैरियर, मैं नहीं कहता कि आप कैरियर बनाओ, बिकॉज देखो हमारी कंट्री में पेशेंट्स बीमारियां बहुत ज्यादा हैं अभी, मतलब हमें डेफिनेटली उनका इलाज करना है। तो पर डेफिनेटली अगर कोई बंदा फोरेंसिक में आना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, वो तो है ही है। बट फोरेंसिक मेडिसिन में ना आपके पास इतना मटेरियल होता है कि आप बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, आपको मतलब उतना प्रैक्टिकल मटेरियल कई बार बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं मिल पाता जितना फोरेंसिक में मिल जाता है, बिकॉज डेड बॉडीज मिल जाती हैं आपको पोस्टमार्टम करने के लिए। और जैसे भी हॉस्पिटल में तो 5-5 केस डेली के आ जाते हैं, तो यू इमेजिन यू आर गेटिंग 5 बॉडीज पर डे। ठीक है, आजकल कोरोना के टाइम थोड़ा अभी मुश्किल हो गया है, अभी वो सारा किट कुट पहनने का काम करना पड़ता है। अदरवाइज तो हम मतलब आपके पास इतना मटेरियल मिल रहा है स्टडी करने के लिए, आप अपना सब कुछ पढ़ सकते हो इसमें ना। तो ये एक फायदा है इसका फोरेंसिक मेडिसिन का, तो ये है कि आप इस फील्ड को मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ो। और हाँ, अगर अगर आप कैरियर बनाना चाहते हो तो इट्स टू अर्ली एट दिस स्टेज टू टेल यू। आप एमबीबीएस के दौरान आप प्लान कर सकते हो, आपको एमबीबीएस के दौरान बाकी सब्जेक्ट्स का भी आइडिया हो जाएगा। और अगर आपने इसमें मान लो प्लान बना भी रहे हो तो आप इंटर्नशिप में ना, इसकी 15 दिन की इंटर्नशिप है, आपको 15 दिन डेडिकेटली आप इसमें काम कर सकते हो, और आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या कुछ होता है इसमें। देन यू कैन प्लान फॉर द फ्यूचर इन दिस ब्रांच।